Hello students, we are going to discuss about uniform circular motion or magnitude of centripetal force. इस टॉपिक में हमें force and d square, you know what is d square? It is a distance between the two objects when they are attracting towards each other. That force is directly proportional to the product of m1 and m2 and the and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये इन्वर्स क्यों होता है? वाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो ये आज हमें पढ़ना है, सीखना है. वी नो दैट in the last video we have studied that f is directly proportional to the m1 m2 upon d square, that is universal law of gravitation, Newton's universal law of gravitational force. And one more formula we know that according to the centripetal force F is equal to mv square upon r. ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करने का ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी यहाँ पे इन शॉर्ट सी दिस इज व्हाट प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ और एलिप्टिकल पाथ अराउंड दैट central object. Okay, so this is what m means what mass of the object, v means what it is the angular velocity, and what is this is the r. Okay, so this is what v, angular velocity. Okay, so mv square upon r. तो आज हमें स्क्वायर फोर्स जो है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस के साथ कैसे रिलेट करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस रिलेशन एफ एंड डी स्क्वायर का रिलेशन. नाउ वी नो दैट velocity is equal to what? Distance traveled upon time taken. But here this distance is, you know, it is a curved distance, it's not a linear one. That is why it is a perimeter of the circle, and perimeter का formula हमें पता है 2 pi r upon t. So what is 2 pi r? This is a perimeter of circle. Okay, in short it is a circular distance. Okay, now इस फॉर्मूला में हमें देखो f इज इक्वल टू m. अभी v का तो पता है, दिस इज व्हाट v का तो हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई r अपॉन t. सो दिस इज व्हाट m तो है, दिस इज 2 पाई r अपॉन t, और इसका जो v स्क्वायर है मतलब ये v स्क्वायर अपॉन r. नाउ अगेन f is equal to m here into 2 square, that is 4, this is pi square, this is r square upon t square. Okay, and upon what it is r. Now this r and this r, it will get cancelled. So what will left? M into 4 pi square into r upon t square. So r get cancelled. So this is what. Now by multiplying, see, by multiplying and dividing r square we get f is equal to here 4m pi square into r square, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ऊपर से. नाउ t स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई भी करने का है, r से डिवाइड भी किया मैंने. नाउ व्हाट यू विल गेट?
दिस इज 4m पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. Next to that is f is equal to 4m pi square upon r square into, this is r cube and t square. ये मैंने क्यों सेपरेट किया, हमें पता है what is Kepler's third law. See, this is Kepler's थर्ड लॉ के अनुसार हमें पता है टी स्क्वायर एंड आर क्यूब का रिलेशन क्या है, के है ना. सो टी स्क्वायर, व्हाट इज टी, इट इज़ अ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज आर, इट इज़ द मीन डिस्टेंस. ओके, लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताया. ठीक है ना. अभी ये जो है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, हमें यहाँ पे ये ऐसा है आर क्यूब अपॉन टी, मतलब इसका इनवर्स है, इनवर्स. आर क्यूब ऊपर है, टी स्क्वायर नीचे है, तो इसका रिलेशन क्या आएगा, 1 अपॉन के आएगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो हियर एफ इज इक्वल टू व्हाट, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 बाई के, क्योंकि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई के. नाउ so here f is equal to what, 4m pi square upon r square into k, क्योंकि k नीचे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, बट वी नो दैट 4m pi square upon k, this is equal to what, constant. Therefore finally we can say that f is equal to constant into 1 by k. In short, we can say that f is inversely proportional to k. Sorry, it is r. R square, this is also r square. See, k is constant, so यहाँ पे r square होना चाहिए, यहाँ पे r square लिखा मैंने. ठीक है, f is equal to what, constant. constant में क्या क्या आता है, 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, तो क्या बच जाएगा, r स्क्वायर. तो ये नीचे है ना, इसीलिए 1 बाय आर स्क्वायर. ठीक है, सो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इज r, और मैं यहाँ पे ऐसा भी लिखता हूँ 1 अपॉन डी स्क्वायर. तो ये जो डी स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन में होता है, यही इससे हमें पता होता है, राइट. दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स. यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या है, इनवर्स रिलेटेड विद द डी स्क्वायर. ठीक है, so this is all about relation between uniform circular motion and magnitude of centripetal force. ठीक है, magnitude of centripetal force. centripetal force डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेट करता है, ठीक है, डिटेल में हमने इस टॉपिक में हमने सीखा है. ठीक है, सो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे.